So before we do refraction, we need to understand a few things about light once more. Light is that source of energy that causes in us the sensation of vision. It is that source of energy that causes in us the sense of vision. ठीक है. So हम लोग लास्ट ईयर दो चीज पढ़ा था. रिफ्लेक्शन on plane surfaces and then we did reflection on curved surfaces, basically spherical surfaces. Okay, so we did all about reflection in class 9. This year we are going to do refraction on plane surfaces and refraction on curved surfaces. Okay, so to do a little bit of revision, रिफ्लेक्शन का लॉ हम लोग को एक बार याद रखना होगा. The angle of incidence is equal to angle of reflection. The incident ray, reflected ray, and the normal lie on the same plane. राइट. सो ये दो लॉ लॉ हम लोग को याद रखना है क्योंकि इस बार भी थोड़ा बहुत हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे. नाउ बिफोर वी डू एनीथिंग विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिफ्रैक्शन इज. रिफ्रैक्शन होता क्या है. ओके, एंड टू डू दैट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव रिफ्रैक्शन. ठीक है. सो व्हेन a ray of light moving from a medium of a given density moves into another medium of another density, then that ray of light bends from its original path. That ray of light bends from its original path. ठीक है. At the surface dividing the two medium. ठीक है. सो अगेन एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रहा है. दोनों का डेंसिटी जो है वो अलग है. तो एट द सरफेस दैट इज डिवाइडिंग दैट टू दोस टू मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ. ठीक है. So we have to visualize this in order to understand it much better. So let's say this is the surface dividing two medium. It can be like water and air. ठीक है. So when a ray of light is moving from air to water, when a ray of light is moving from air to water, एयर से वो वाटर के तरफ मूव कर रहा है, then at the surface or at the surface dividing the two mediums, at the surface
dividing the two medium, this ray of light will bend away from its original path. अपने original path से वो bend कर जाएगा. It will not move along in its original path anymore. तो original path आपका ये था, this was the original path, but this ray of light took a different path. It bent away from its path, and now it is on a different path inside the water. But this is only going to happen when there is a difference in the density of the two medium. ठीक है? When a ray of light moves from a rare medium to a dense medium, it bends towards the normal. When a ray of light moves from a rare medium to a dense medium, it bends towards the normal. ठीक है? We'll understand what it is. And the other statement is when a ray of light, ये हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखते हैं and vice versa. So what do we understand here? So in this diagram, we have two important labelings, three important labelings, in fact. We have an incident ray. We have a refracted ray. And we have a normal. We have an incident ray, a refracted ray, and a normal. ठीक है? Incident ray क्या होता है? The ray of light which strikes at a point on the surface separating two medium is known as incident ray. So पहला रे क्या कर रहा है? देखिए, ये आपका सरफेस को, दिस इज द सेपरेटिंग सरफेस, इस सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रहा है. सो द रे दैट स्ट्राइक्स दिस सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे. ठीक है? The point at which the incident ray strikes the separating surface is the point of incidence. It is the point of incidence. So इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं point of incidence. ठीक है? The ray of light that travels into the second medium after undergoing refraction
is known as the refracted ray. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो ये रे जो है, इसको हम लोग बोलेंगे, इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ट्रैवल कर रहा है, सेकेंड मीडियम में ये ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। एंड देन द परपेंडिकुलर drawn at the point of incidence is known as the normal. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। और ये नॉर्मल जो है, इट इज एक्चुअली drawn at the point of incidence. It is drawn at the point of incidence. Clear है? Okay, let's move forward. So again, let us see this. इसमें आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा दैट द रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन टू द सर्फेस इज द इंसिडेंट रे. The ray of light that bends and travels into the second medium is your refracted ray. The perpendicular that we draw on the point of incidence is known as the normal. And obviously, we have two mediums of different densities. Okay. So if we are going from air to water, we are actually going from a rare medium to a dense medium. Rare medium मतलब भाई इसका density जो है इसके comparison में कम है. That is the meaning of a rare. ठीक है. सो जब हम लोग एक कम डेंस मीडियम से एक रिलेटिवली ज्यादा डेंस मीडियम में मूव करते हैं लाइट को, देन द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, यहां भी आप वही देखेंगे. सो इफ दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंस मीडियम, देन द रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल के तरफ बेंड कर रहा है. ठीक है, यानी ये एंगल अगर थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 1 जो है थीटा 2 से ज्यादा होगा, बड़ा एंगल होगा. ठीक है, बट इफ दिस रे ऑफ लाइट is moving from a dense medium to a rare medium, लेट्स से ये वाटर या ग्लास से एयर की तरफ मूव कर रहा है, then it will bend away from the normal. It will bend away from the normal. ठीक है, तो अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होता है. सो हम लोग यहां लिखेंगे व्हेन द रे ऑफ लाइट travels from from a dense medium to a rare medium, then the ray of light bends away from the normal. Then the ray of light bends away from the normal. ठीक है, and that is what we meant by the vice versa that we had written here. ठीक है, so we wrote this statement. vice versa बोला था. vice versa मतलब यहां हम लोग लिखा है कि भाई रेयर से डेंस जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करता है, ये तो क्लियर है.
बट इसका उल्टा क्या है कि वो डेंसर एयर जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड outward from the normal. Okay, please copy both diagrams. You are going to copy this diagram and then this diagram. Please copy both diagrams, very important. Copy the diagrams. Laws of refraction. Number one, the incident ray the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane. The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant. It is constant for the pair of given media. यानी sin I by sin R is a constant value for a given pair of media. यानी एयर वाटर के लिए वो कांस्टेंट होगा, वाटर एयर के लिए वाटर और ग्लास के लिए वो कांस्टेंट होगा. So for a given pair of media it is constant and it is known as the refractive index for that pair of media. It is known as the refractive index for that pair of media. ठीक है, एंड हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं. सिंबल को हम लोग म्यू बोलते हैं. ठीक है, नाउ ये समझना थोड़ा जरूरी है. पहला स्टेटमेंट एक्चुअली कंफ्यूजिंग है अगर आप लोग अगर इस पे डीप में नहीं जाएंगे, एंड सेकंड वाला को समझना जरूरी है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट. if this is a surface dividing two mediums if this is a surface dividing two mediums, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है एंड बेंड कर रहा है. ये मेरा नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया. ठीक है, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, अगर ये I1 है और ये R1 है फॉर वन केस, हो सकता है कि इंसिडेंट रे एक और ऐसा हो. ये एंगल मेरे लिए हो जाए I2 और ये एंगल हो जाएगा R2. ठीक है, सो साइन I1 by sin R1 is the refractive index for let's say medium 1 and medium 2.
ठीक है, it is the same value that we get when we do sin I2 by sin R2. दोनों केस में अलग अलग एंगल है, बस दोनों का साइन का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है. सो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया ये वैल्यू सेम रहेगा हमेशा. ठीक है, फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. तो अगर ये मेरा मीडियम 1 एयर है एंड मीडियम 2 वाटर है, तो आप तीन चार एंगल ले लीजिए, इंसिडेंस का, रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंस का, रिफ्रैक्शन का, एंड आप साइन निकालिए एंड उसका रेशियो निकालिए, आपको वैल्यू सेम मिलेगा. अगर ये एयर एंड ग्लास है तो आप अगेन तीन चार एंगल निकालिए, साइन आई बाई साइन आर निकालिए, तीन चार बार निकलेगा, सबका वैल्यू सेम आएगा. ऑल्दो इट विल नॉट बी द सेम एज द प्रीवियस केस. एयर और वाटर का केस में जो वैल्यू आया था उससे सेम नहीं होगा, बट एयर एंड ग्लास के लिए जो तीन अलग अलग वैल्यू है, तीन अलग अलग सेट है, वो सेट मेरा सेम रहेगा. ठीक है, सो ये एक सेपरेट वैल्यू रहेगा और ये एक सेपरेट वैल्यू रहेगा. बट आप जितने बार साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे इसके केस में, दे विल ऑल गिव द सेम सेपरेट वैल्यू हियर. ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए एक फिजिकल वैल्यू भी हो जाता है. इट बिकम्स अ फिजिकल वैल्यू, समथिंग दैट इज वेरी इंट्रिकेट टू द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द सब्सटेंस. यानी किस मटेरियल का वो मीडियम बना हुआ है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है मटेरियल पे भी. अगर कोई बोलेगा ग्लास हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.5, इसका मतलब है कि एक सर्टेन ग्लास है उसका 2.5 है. हो सकता है देयर इज अनदर ग्लास दैट हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.4, यानी ये मटेरियल अलग है और ये मटेरियल अलग है. अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये भी समझ में आता है मटेरियल भी अलग है. सो इट ऑल्सो गिव्स अस अ वेरी it gives us a very brief understanding of the physical property of the material as well. It's a physical property as well. ठीक है, now when we say कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, याद रखिएगा. although you the screen that you're seeing is a two-dimensional screen, it's a two-dimensional screen, it's a flat surface. Correct, the screen that we are looking into at this moment is a two-dimensional screen. So let us envision a three-dimensional space. This is a three-dimensional space. इसमें कुछ ऐसे मूव कर सकता है, कुछ ऐसे मूव कर सकता है, कोई चीज ऐसे मूव कर सकता है, कुछ ऐसे मूव कर सकता है. राइट, समथिंग कैन मूव लाइक दिस, अप एंड डाउन, समथिंग कैन मूव लेफ्ट एंड राइट, एंड समथिंग कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल. करेक्ट, इतने सारे डायमेंशन में मूव कर सकता है. करेक्ट, लाइट भी ऐसा कर सकता है. लाइट इधर मूव कर सकता है, लाइट इधर मूव कर सकता है, लाइट ऐसे भी मूव कर सकता है, लाइट ऐसे भी मूव कर सकता है. सो इट कैन मूव इन एनी 360 डिग्री डायरेक्शन इन साइड अ थ्री डायमेंशनल स्पेस. करेक्ट, बट हम लोग बोलते हैं सपोज एक लाइट ऐसे आया, एक मीडियम का सेपरेटिंग सरफेस को टच किया एंड वो बेंड कर गया. करेक्ट, इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल मेरा यहां है. ठीक है, ये तीनों लाइन जो है ना, आप एक सिंगल पीस ऑफ पेपर में बना सकते हो. यू कैन ड्रॉ इट ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर. What do we understand by saying that we can draw it on a single piece of paper?
Please understand this. This is a flat piece of paper. So अगर ये ray of light एक marking कर रहा है तो आया separating surface में वो bend किया और यहाँ मेरा normal है. So it can draw the lines, all the lines on a single piece of flat paper. ऐसा नहीं है कि ये जब move कर रहा था तो ray of light इधर आया and then ये if you look at your screen it came out of your screen and normal आपके पास यहाँ है. प्रॉब्लम ये है कि ये एक फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किया जा सकता है एंड व्हेन यू कैन ड्रॉ समथिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन अ फ्लैट प्लेन देन वी से दैट दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. व्हेन वी से समथिंग लाइज ऑन द सेम प्लेन मतलब वी कैन ड्रॉ दैट ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर एज वेल. ठीक है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 डायरेक्शन ले सकता है. ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस कोई भी ले सकता है बट ये तीसरा डायमेंशन नहीं यूज करेगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर? सो व्हेन वी से दे आर ऑल आर ऑन द सेम प्लेन मतलब वो तीनों को एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज नॉट अ 3 डायमेंशनल डायग्राम. ये जो है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे आर नॉट अ 3 डायमेंशनल डायग्राम. इट्स अ 2 डायमेंशनल डायग्राम और फ्लैट डायग्राम. इट्स नॉट अ 3D डायग्राम. ठीक है, so understanding this, the question becomes why does light bend? The question is why does light bend? So light bends when moving from one medium to another because of the change in speed. ठीक है, this is not the answer. चेंज इन स्पीड होता है, ठीक है, नॉट द एग्जैक्ट आंसर. चेंज इन स्पीड होता है but why is the change in speed happening? Speed of light is frequency into wavelength. याद रखिएगा, लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव है. ठीक है, एंड कोई भी वेव में फ्रीक्वेंसी होता है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड. एंड वेवलेंथ क्या होता है? द लेंथ ऑफ ईच वेव. वेवलेंथ क्या होता है? द लेंथ ऑफ ईच वेव. कितना लंबा है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई माइनस्क्यूल होता है. सो वी हैव वेरी डिफरेंट साइजेस ऑफ वेव्स. एंड फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने बार ये वेव प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ light is an integral property of the source of light. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, लाइट का जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी में लाइट को एमिट कर रहा है. ठीक है, हम कोई भी सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है? लाइट को एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देता है बाहर की तरफ. तो वो किस फ्रीक्वेंसी में रिलीज करता है वो कंप्लीटली सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम थ्रू विच द लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू. Therefore, when light moves from different mediums, yeah, through different mediums,
its wavelength changes. ठीक है, अब सोचिए फ्रीक्वेंसी तो सेम है, वेवलेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है? तो अगर वेवलेंथ कम हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, अगर स्पीड ऑलरेडी कम था और अब वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो स्पीड उस वेव का बढ़ जाएगा. सो मे बी एक बड़ा वेव इंसिडेंट हो रहा था, and then after the refraction it started to move in a bend direction with a smaller wavelength. वेवलेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस वेवलेंथ का कम होने की वजह से मेरा स्पीड कम होता है, एंड स्पीड कम होता है प्लस मेरा लाइट भी बेंड होता है. सो द लाइट इज बेंडिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. द लाइट बेंड्स बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहां मेरा अगर 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड से मेरा बॉडी का सॉरी लाइट का स्पीड है, और यहाँ 2 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड का स्पीड है, इट इज या 2.5 ले लेते हैं. ये चेंज इसलिए किस लिए हो रहा है, क्योंकि मेरा वेवलेंथ चेंज हो जा रहा है. क्यों हो रहा है, वेवलेंथ चेंज होने की वजह से. चीज कॉपी. सो सो लाइट बेंड क्यों करता है ये समझ में आ गया. सो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction, right? Now the point is कि refractive index of a medium is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of the angle of refraction. But refractive index can also be defined as be defined using the speed of light. हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को भी यूज करके इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज the ratio of the speed of light in vacuum or air to the speed of light in the given medium. ठीक है, सो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट
in vacuum by speed of light in that medium. बट ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देगा? इट इज गोइंग टू गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा. हम लोग अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देख रहे थे? एक मीडियम को दूसरे मीडियम को लेकर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. हमेशा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के हिसाब से निकाल देते हैं. बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देता है? सिर्फ एक मटेरियल को लेकर देता है, क्योंकि ये दूसरा मीडियम को कंसीडर करता नहीं है, बिकॉज दूसरा मीडियम तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम को हम लोग कंसीडर करते ही नहीं है इन दिस केस. तो इट इज गोइंग टू गिव यू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. सो अगर हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect of the first medium is equal to speed of light in first medium by speed of light in second medium. ठीक है. तो हम लोग यहां बोलेंगे ये. सो this will give you the refractive index of the second medium with respect to the first. What do we mean by that? Second medium with respect to first. इसका मतलब है कि भाई अगर हम एयर से वाटर की तरफ जा रहे हैं तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज एयर. अगर हम ग्लास से वाटर की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज ग्लास. अगर हम लोग लेट से ऑक्सीजन से जा रहे हैं, एयर नहीं है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का डेंसिटी में भी डिफरेंट होगा, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. यानी व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज ऑक्सीजन. व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज ऑक्सीजन. समझ में आ रहा बात? तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट देता है. ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम देता है. पानी का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? ग्लास का क्या है? सॉल्ट का क्या है? सो इट विल गिव यू अ वेरी इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम. प्लास्टिक का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये नहीं बोल रहा है यहां कि भाई व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज देयर. वो नहीं बोल रहा है. यहां बोल रहा है सिर्फ एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जब मेरा लाइट वैक्यूम से आ रहा है उसके पास.